السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ تمام اساتذہ کرام کا، ٹیچرز لوگوں کا میں اپنے چینل اونلی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کے ہونے والے امتحان جو سکشمتا کا ہے 3 کا ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے خواہش ظاہر کیا تھا کہ ہم لوگ الحمدللہ آبجیکٹو کوشچن تو پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اقتباس چاہیے، جس کو ہندی میں ہم گدھانش کہتے ہیں اور اردو میں اقتباس کہتے ہیں۔ اس بار کے 2024 میں جو سکشمتا ایگزام ہوا تھا، کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جنہوں نے اس اقتباس کو پڑھنے میں اتنا وقت لگا دیا اور پوری طرح سمجھ نہیں پایا، جس کی وجہ سے وہ کچھ نمبروں سے ناکام ہو گئے۔ تو ایسی غلطی، ایسی بھول ہمیں آپ کو نہیں کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو پڑھاؤں گا اقتباس، اور وہ بھی اقتباس آپ کو دکھاؤں گا جو پچھلے سال ایگزام میں پوچھا بھی گیا تھا۔ پچھلے سال مطلب اس سے پہلے جو سکشمتا ہوا تھا 2024 کے سکشمتا 2 میں یا 1 میں۔ تو آئیے ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اقتباس کو ہمیں غور سے پڑھنا پڑتا ہے، اور اقتباس اتنا آسان کوشچن کہیں بھی نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس کو پڑھ کر کے اس میں سے جواب دینا آپ کو ہے۔ وہ لوگ ناکام زیادہ ہو جاتے ہیں جن کا اردو پر پکڑ صحیح سے نہیں ہے، صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ باہر کی باتیں انشاءاللہ بیچ میں ہوگی، پہلے آپ سوال کو دیکھیے کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیے لکھا ہے کہ نیچے دی ہوئی عبارت پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال کہہ رہا ہے کہ جو یہ سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، اس کو پڑھیے۔ اس کو ہندی میں ہم گدھانش کہتے ہیں اور اسی کو ہم اردو میں اقتباس کہتے ہیں یا عبارت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کو دھیان سے سنیے گا، پڑھیے گا۔ اس میں لکھا کیا ہے؟ لکھا ہے کہ ماسٹر صاحب اس کی ایجاد کرنے والے لوئی بریل تھے۔ اس کو یہاں دماغ رکھیے گا، لوئی بریل تھے۔ وہ پیرس کے نزدیک کوبرے نام کے قصبے میں جنوری 1809 میں پیدا ہوئے۔ یاد رکھیے گا اس کو، جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم دماغ میں آ رہا ہے کہ لوئی بریل، اور نیچے میں آ رہا ہے 1809۔ 2 سال کی عمر میں ایک نوکیلا اوزار لگ جانے سے لوئی کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ دھیان رکھیے گا، جاتی رہی، مگر لوئی نے ہار نہیں مانی۔ اس کا نام تھا لوئی بریل۔ ہار نہیں مانی اور نہ کسی طرح تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہے۔ اپنی 20 سال کی محنت، یاد رکھیے گا، اپنی 20 سال، کتنا ہے؟ 20 سال کی محنت اور لگن سے انہوں نے اس تحریر کہتے ہیں لکھاوٹ کو، اس تحریر کو ایجاد کیا، جسے انہی کے نام پر بریل تحریر کہا جاتا ہے۔ بریل تحریر کہا جاتا ہے۔ بچوں، اس تحریر کو ایجاد کر کے لوئی نے نابینا لوگوں کے، نابینا کہتے ہیں جن کی آنکھ نہیں ہے، نابینا لوگوں کے لیے تعلیم کا راستہ کھول دیا اور ان کی تاریک زندگی میں روشنی بکھیر دی۔ تاریک کہتے ہیں اندھیری، ان کی تاریک زندگی میں روشنی بکھیر دی۔ یہ ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں اسلم۔ ماسٹر صاحب، یعنی اسلم اور ماسٹر صاحب میں بات ہو رہی ہے۔ اسلم، ماسٹر صاحب کیا آپ کو بریل تحریر آتی ہے؟ بریل تحریر آتی ہے؟ ماسٹر صاحب سے اسلم نے پوچھا۔ آپ محمود کو کیسے پڑھائیں گے؟ آپ اس کے ہوم ورک کی جانچ کس طرح کریں گے؟ اور پھر امتحان کی کاپی کیسے جانچی جائے گی؟ یہ چیپٹر جو ہے ہم اپنے کلاس کے اندر، جو کلاس 9 کا ایک کلاس ہے، اس کے اندر کلاس 10 میں ایک کتاب ہے CBSE بورڈ کے اندر، جس کا نام ہے جان پہچان کورس بھی ہے، جس میں الحمدللہ خود آلریڈی ہم ٹیچر ہیں۔ اس نے سبق کا نام دیا ہے نئی روشنی۔ ایک بچے ہیں اور ماسٹر صاحب ہیں، تو ماسٹر صاحب نے بچوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک بڑی بات یہ ہے کہ آج ایک ایسا لڑکا ہے جو نابینا ہے، جس کی آنکھ نہیں ہے، وہ ہمارے کلاس میں، تمہارے کلاس میں آج سے پڑھنے آئے گا۔ جب بچوں نے یہ سوال کیا، اس کا نام تھا اسلم۔ بہر کب یہ تمام کہانی اس کے اندر ہے، اسی سے اقتباس یہ لیا گیا ہے۔ اب آپ کو اس ایک سوال کا جواب سمجھنا ہے۔ جتنی چیزیں تھیں امتحان میں جو کوشچن بنا گیا اس سے، وہ میں نے ٹک لگا دیا۔ دیکھیے یہاں پر
सवाल में है बरेल तहरीर किसने ईजाद की? लुई बरेल, सुई गरेल, डोइन पैटर्न और थरेल कलिस्टन। लिखा है ना ये ऊपर में आया था कि बरेल तहरीर किसने किया था? तो लुई बरेल ने किया था। किसने किया था? लुई बरेल ने। जितने इक़्तिबास आते हैं उन तमाम को मैं इंशाल्लाह 10-15 इक़्तिबास आपको पढ़ाऊंगा, एक भी कुछ छूटेगा नहीं। और 2018 के टीईटी में इसको भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए। तो बरेल तहरीर कितने ईजाद की? लुई बरेल ने। इसी तरह आपको निकालना है, चूंकि उस पर है 2 में है, वह कब पैदा हुए थे? तो मैं आपको दिखा दूं, ये चीज़ इसके अंदर है, यहाँ लिखा है कब पैदा हुए थे। इसका सही जवाब क्या है? वो पैदा हुए थे 1809 में। 1809 में। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, 1809 लिखा है, देखिए यहाँ पर है, इसी में है कि 1809 में वो पैदा हुए थे। तो कहाँ मिला आपको? आपको इसी इक़्तिबास मिला, 1809 में पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसी तरह कहते हैं आपको एक एक पढ़ना होगा और देखना होगा, सब इसमें ही रहता है। 26 हो गया, 1809 में पैदा हुए। नंबर 27 में है कि नोकीला औजार लग जाने से क्या जाता रहा या क्या जाती रही? उनका हाथ चला गया, नाक चली गई, कान के पर्दे फट गए, आंखों की रोशनी चली गई। बताइए, नोकीला औजार लगने से इंसान का क्या होता है? अगर आँख में लग जाए तो आँख की रोशनी चली जाती है। तो ये आपका जवाब सही है, जो आपके गद्यांश में ही लिखा हुआ है। सवाल नंबर 28 में है कि बरेल तहरीर को कितने साल की मेहनत लगन के बाद ईजाद किया? अब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि बरेल तहरीर को लिखने में 20 साल का वक्फा लगा था। कितने साल का? 20 साल का। ये सब कहाँ मिल रहा है? उसके अंदर। जब उसको एक बार नहीं 2 मरतबा पढ़ेंगे ध्यान से तो आसानी के साथ फटाफट भगा करके टिक मारते रहेंगे। 29 को देखते हैं, मास्टर साहब क्या आपको आती है क्या चीज़? कोमल तस्वीर, नकल नवेसी, बरेल तहरीर, नारजिल तहरीर। बताइए, इसमें था कि नहीं? क्या था कि क्या मास्टर असलम ने पूछा था मास्टर साहब क्या आपको बरेल तहरीर आती है? तो यहाँ पर भरा जाएगा बरेल तहरीर, यहाँ पर भरा जाएगा उठा करके। ठीक है ना, चलिए 29 हो गया। अब देखते हैं 30 में तहरीर का जिद क्या होता है? तहरीर का जिद क्या होता है? तकरीर, तनवीर, शमशीर, शब्बीर। शब्बीर नाम है, तनवीर नाम है, शमशीर के माना होता है तलवार, और तहरीर के माना होता है लिखना। तो उसका जिद पूछ रहा है, जिद होता है उल्टा को। तो तहरीर कहते हैं लिखने को, और तकरीर कहते हैं जो ज़बान से हम बयान करते हैं, बात करते हैं, बयान करते हैं। तो तहरीर का जिद हो जाएगा तकरीर। क्या हो जाएगा? तकरीर। ये एक इक़्तिबास हो गया। और ये देखते हैं इक़्तिबास में एक और आपको देंगे जो इसी साल सक्षमता 2 के अंदर या 1 के अंदर पूछा गया था। और मेरे पास एक ऐसी ओल्ड किताब है, पुरानी किताब है, जिसमें तमाम इक़्तिबास आपको दिया गया है। इंशाल्लाह इसमें तो तकरीबन मैं आपको 10 से 15 इक़्तिबास पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, आपको याद भी जाएगा। और आप मेरे साथ ग्रुप में जुड़ते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका तमाम PDF भी दूंगा आंसर शीट के साथ। चलिए, हकीकत है कि ज़बान की तरक्की पर असरअंदाज होती है तंदुरुस्ती, दानिश्वरी, इनफरादी इख्तलाफात, इनमें सभी। इसका जवाब होगा इनमें सभी होता है। इंसान जब अक्लमंद होगा, तंदुरुस्त होगा, इनफरादी इख्तलाफ यानी कि मुख्तलिफ जब बातें सामने आएंगी इंसान की ज़बान में तरक्की होगी। इनमें सभी सही है। अब देखिए इक़्तिबास नंबर 2 देखते हैं। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, चुनिए जवाब। और ये क्वेश्चन आपको इस बार के सक्षमता 2 में आया हुआ था। देखिए मेरे पास किताब कितनी पुरानी है कि हम आपको उस सवाल से नहीं पढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी किताब से हम पढ़ा रहे हैं आपको। बहुत ओल्ड और पुरानी किताब है, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, इंशाल्लाह छूटने वाला नहीं है। ये ख़त 1939 के मौसम ख़ज़ा में सदर रूजवेल्ट को लिखा गया था। 6 साल बाद 6 अगस्त 1945 को इस किस्म का सिर्फ एक बम जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा ये क्वेश्चन आया था। तो क्या पूछ रहा है, ये खत कब लिखा गया था? यहाँ आपका सवाल नंबर 1 बनाएगा कि कब गिरा था? 1939 में। ठीक है, उसके बाद से कहाँ गिरा गया था? तो शहर हिरोशिमा पर। कहाँ? हिरोशिमा पर। अब आगे देखते हैं। 60,000 अफराद हलाक हुए। कितने? 60,000 अफराद हलाक हुए, 1 लाख जख्मी। इस साल पूछा था कितने हजार अफराद हलाक हुए थे। हो सकता है इसी को देख करके पूछे आपसे कितने लोग जख्मी हुए थे, तो 1 लाख।
और 2 लाख अफराद क्या हो गए, घर से बेघर हो गए थे। ये तमाम चीज़ें हैं जो क्वेश्चन के बनने के काबिल है। 2 लाख अफराद बेघर हो गए। उस जौहरी बम के नतीजे में शहर के तकरीबन 600 ब्लॉक है ना, हमारा जो होता है 600 ब्लॉक जो है ना, प्रखंड क्या हो गया, तबाह हो गए थे। कुछ ही दिन बाद ऐसा ही एक बम नागासाकी के शहर पर गिराया गया। जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए। किसने? जापानी हुकूमत, हिंदुस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत, ये सब विकल्प देगा। जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए और इस तरह दूसरी जंग अजीम इख्तिताम को पहुंची ना। तो कौन? जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिए। इन तमाम जो मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, घेर रहा हूँ, उसको ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उस जौहरी बम के बुनियाद आइंस्टाइन के उस नज़रिए पर थी जो उसने 1905 में पेश किया था। कब के था? 1905 में पेश किया था। और ये कि मादे की तवानाई में और तवानाई के मादे में तब्दील किया जा सकता है। साबिक साइंसी नज़रिया ये था, मादे की न तो तख्लीक मुमकिन है और न उसको तबाह करना। अपने हिसाबात से इसने एक सीधी सादी अलजबराती मसावत अखज़ की है। ये हो गया आपके गदात पढ़ लिया आपने। अब आइए सवाल क्या बनाता है कि ये ख़त किस सन में लिखा गया। ये ख़त किस सन में लिखा गया? देखिए शुरू में है ये ख़त जो है 1939 में लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिया होगा 1939, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी में 1939 में ख़त लिखा गया। दूसरा सवाल, एक किस्म का बम किस शहर पर गिराया गया? हिरोशिमा, हांगकांग, सिंगापुर, लंदन। क्या जवाब सही होगा? बताएंगे ऊपर में कि हिरोशिमा पर बम गिराया गया। ऑप्शन आपका ये सही है। नेक्स्ट सवाल में, उस जौहरी बम के नतीजे में शहर में कितने ब्लॉक तबाह हुए थे? कितने प्रखंड तबाह हुए थे? 500, 600, 300, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। तो उसमें था क्या था? देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा है ना, ठीक है, क्या लिखा है कि उस शहर में 600 ब्लॉक इसमें ही है। तो आपको यहाँ टिक मारना है कि 600 ब्लॉक क्या है, तबाह हो गए थे। कितने? 600 ब्लॉक तबाह हो गए थे। आप फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह इसका PDF दे दूंगा, बिल्कुल आंसर शीट के साथ। सिर्फ आपको 1-2 बनाना है। 14 से 15 आप अगर गद्यांश पढ़ लिए तो यकीन जानिए कि कहीं से भी आएगा। या ऐसी किताब मोतबर है कि हर साल TET हो, STET हो या सक्षमता हो, इसके ही से आपसे पूछे जाते हैं। बड़ी काबिज और मेहनत और पैसे से हमने इस किताब को हासिल किया है। देखिए 600 ब्लॉक। अब देखते हैं सवाल नंबर 49 में, जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो तकरीबन बेघर हुए थे कितने? 5 लाख अफराद, 7 लाख अफराद, 1 लाख अफराद, 2 लाख अफराद। तो देखिए ब्लॉक आए तो 600 ब्लॉक और यह है कि कितने अफराद घर में हुए थे? तो 2 लाख अफराद। कितने? 2 लाख। यह आपका ऑप्शन डी सही है। 49 क्वेश्चन का जवाब कितना आपका है? सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। अब देखते हैं नेक्स्ट में 50 में, उस जौहरी बम के बुनियाद आइंस्टाइन की नज़रिए पर थी जो 1905 में पेश किया था, 1910 में पेश किया गया था, 1908 में पेश किया गया था, या 1909 में पेश किया गया था। बताएंगे आप? सही जवाब के सवाल जो क्वेश्चन 50 है उसका सही जवाब है ऑप्शन आपका ए है। उस पर दिखाया गया था कि 1905 में उसने पेश किया था, 1905 में पेश किया था। देखते हैं सवाल नंबर 51 में, मादे को तवानाई और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है, ये किसका नज़रिया है? ये भी आपके उसमें इक़्तिबास में दिया हुआ है। मादे को तवानाई और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है, ये किसका नज़रिया था? यह किसका नज़रिया था? जवाब है अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कथा नज़रिया था कि मादे को तवानाई में और तवानाई को मादे में तब्दील किया जा सकता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 52 में है, बम नागासाकी शहर पर गिराया गया तो अंग्रेजी हुकूमत ने हथियार डाल दिया, जापानी हुकूमत ने हथियार डाल दिया, चीनी हुकूमत ने हथियार डाल दिए, ममलकत रूस ने हथियार डाल दिए। मैं आपको दिखाया था कि जब बम नागासाकी शहर पर गिराया गया तो उस वक़्त घबरा कर जापानी हुकूमत ने क्या किया था? हथियार को डाल दिया था। तो
क्वेश्चन है जो आपको दिखाया गया कि ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। जब 1 से 2 बार दिल से पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका जवाब आपको मिल जाएगा। 1 से 2 बार वो इक़्तिबास पढ़ने के बाद सवाल पढ़िएगा और फिर फ़ौरन देखिएगा इक़्तिबास देखिए सवाल इसका कहाँ है और वो देख करके आपको टिक मारना है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 54 में है, 54 में है, शऊर का माना क्या होता है? बद दिमाग, बेकार की बातें, बेवकूफ़, अक्लमंद समझ। याद रखिएगा कि शऊर का माना होता है समझदार, अक्लमंद, होशियार एंड चालाक, अक्लमंद होगा। ठीक है, ये आपके 2 इक़्तिबास रहे। ऐसे ही करके मैं इंशाल्लाह हर वीडियो में 2 या 3 इक़्तिबास दूंगा, जिसमें आपको 14 से 15 इक़्तिबास देने के बाद से तमाम इक़्तिबास आपके जहन में आ जाएंगे। बार बार पढ़ना है, लेना है, याद करना है। देखिए, आप चाहें तो मुकम्मल तैयारी के लिए मुझसे रब्ता काम करिए। मेरा रब्ता नंबर आपको मालूम होगा 80 84 92 80 92। इसको नोट कर ले, 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92 रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपको तमाम उर्दू के ग्रामर के साथ साथ आपको उर्दू अदब का यानी कि दरख्शा और रोशनी का और साथ ही इक़्तिबास आपको इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह आपको खुशी होगी और इम्तिहान में कामयाबी आपकी पक्की है। मेरी तरफ से आप तमाम को दुआ है कि इम्तिहान के लिए फ़ौरन भरिए और कामयाब होइए और अपने अच्छे नंबर से लोगों के अंदर खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।